Nice. Welcome to the community. Thank you guys. Even I'm looking forward. Okay, तो हम लोग का अच्छा लास्ट पार्ट बचा था. वर्मा कुछ पूछ अच्छा रहा बिफोर था. दैट सॉरी निखिल भैया सिंस आई सी लाइक इतना आप एक्सपीरियंस किए हुए हैं कुछ कुछ चीजें मतलब उतना तो हम लोग नहीं किए हैं बट आई हैव हर्ड वन थिंग कि किसी बिजनेस में या किसी भी चीज में प्रोडक्ट से ज्यादा उसकी स्टोरी बिकती है. ओके निखिल. No, I सो mean, प्रोडक्ट से ज्यादा उसकी स्टोरी बिकती है. सो मतलब इस पे लाइक क्या आपका वो हो सकता है व्यूज? यार मतलब ये तो बहुत सब्जेक्टिव है. ठीक है, मैं पूरे तरीके से बाय नहीं करूंगा. एक अभी रिसेंटली एक बहुत अच्छा वीडियो आया था अश्विनी गोरवर का विद दिस अदर गाय. आई कैन शेयर लिंक इन द ग्रुप आफ्टर सम टाइम. उन्होंने बहुत सिंपल बात बोलता है, यार आप कोई भी ऐसा प्रॉब्लम स्टेटमेंट उठा लो जो हेल्प कर रहा है, कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, एंड देन देयर इज complete transparency and you are like you are abiding by the promises that you have made. Like let's take an example of कैसा बताऊं मैं आपको, कोई अच्छा एग्जांपल ले लेते हैं. लेट मी चेक. मैं ऐसा कौन सा एप्लीकेशन है जो बहुत यूज करता हूँ अभी. जेरोदा का ले लो. ठीक है, दे प्रॉमिस लाइक फ्री like trading or very minimal fees and least failure. So the reason that they are famous not because like they're the best product in the market. There are way better products than that. It's about the promise that they have made and they're consistently delivering it. तो आप जो promise कर रहे हो वो डिलीवर कर रहे हो, एंड इफ देयर इज अ नीड ऑफ द सर्विस. वो अश्नील ग्लोबल का वीडियो भेजूंगा मैं आपको. डू वॉच इट मैन. लाइक वो तो बहुत प्यारा समझाता है. वी आर आई माइट नॉट बी वेरी गुड विद द एग्जांपल्स बट ही इज द गाय and you should definitely watch his video. I'll share that link right away. बाकी जो स्टोरी का पॉइंट है ना, सी समटाइम्स स्टोरी विल वर्क, समटाइम्स इट विल नॉट वर्क. मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता भाई आप कितने गरीब हो कितने अमीर हो. इफ यू आर हेल्पिंग मी in a way that I can optimize my life, you help me to save time, you help me to multiply money, and you help me to become productive, then you are useful to me. Otherwise, you are not useful. स्टोरी टेलिंग लाइक बोलो जाओ. नहीं लाइक मेरा एक अदर क्वेश्चन है तो तू कंटिन्यू कर ले. ओके, मैं पूछ रही थी कि स्टोरी टेलिंग एक तरह से हम शुगर कोट की तरह भी देख सकते हैं ना, कि हमारा एक आइडिया तो है बट उसको हम बहुत प्लेजेंट दिखाने के लिए एक स्टोरी के फॉर्म में करने की कोशिश कर रहे हैं, which can also seem like something which you said कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए. तुम्हारे बिजनेस मॉडल क्या है, तुम क्या कर रहे हो, क्या डिलीवर कर रहे हो. That is good if you, that's good as a skill, not as a story to sell your product. आप बहुत अच्छे से बात करोगे if you're able to present it. Like let's take an example. Now, as a Gargi, if you're able to convince me that what I will get if I spend 3 hours a week in this forum, if you're able to convey your idea, even in a sugar-coated way or even in a simplified way, and I can see some value out of it, then it will sell. Otherwise, if you're not able to give me real value, but still you are able to make sounded very crispy and very valuable to me, I might join for a week, and then after that I will not. So even if you're so having that as a skill is good, that you can convince me to participate even you don't have any infrastructure, you are like completely broke, but you told me that next week I have a session. So your skills of communicating the story or sugarcoating it in a very polite and a deliberative way to make it sound more appealing is good for for convincing me. Now the second skill that comes here is that can you also create something in that 1 week which is equally engaging, that you can keep me occupied, you can keep me engaged, so that I also join you for the week 2, week 3, week 4, something like that. So that is only a skill, and if you're not able to deliver it, that skill will be like आप कुछ टाइम ही तैयार होगे ना, फिर डूब जाओगे. got दिया. सौम्य पूछ रहा था कुछ. No, like let's come to this finance topic, and since you are like more grown up than most of us are, and I asked this question a few sessions earlier, that what do you think that before investing, should we invest into something that is more like just जहाँ risk बहुत कम है,
like you are married, just you said that, and like आपके पास एक responsibility है आपकी family की, like, है ना? तो आप कैसे सोचते हो कि आपको उस एसेट्स में ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ पे आपको एक स्टेबिलिटी मिल रही है, यहाँ पे जहाँ पे आपको एक फिक्स रिटर्न मिल रहा है, बिकॉज यू हैव दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड योर फैमिली? सो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना या पीपीएफ या ईपीएफ में इन्वेस्ट करना, जहाँ पे आपको पता है कि लाइक इन्फ्लेशन को आप बीट कर रहे हो इवन विथ अ वेरी स्मॉलर मार्जिन, बट वहाँ पे आपको एक फिक्स रिटर्न मिल रहा है एंड दैट विल गिव यू द स्टेबिलिटी. सो See, व्हाट्स योर I व्यू? again, I'll tell you, like, I'm not the finance expert here. How I work or how I look at this particular question that you've asked, and ideally यार ये तो वो लोग ही बता पाएंगे जो experts हैं. मैं अपना point of view बताता हूँ. I try to be aggressive, ठीक है, in terms of investment, क्योंकि ये उम्र ही नहीं है ना अपनी. So there is nothing to lose. Like how much wealth you have accumulated. It's not even in like my combined wealth, I would say that it's only few lakhs. Okay, not a lot of amount. और अभी तो काम करना शुरू किया है. The career is worth like 30 years, and I've been working only from 6-7 years. So पहले का 10 साल 12 साल तो full खींच के aggressive रहा हूँ, ठीक है? Because here, what you are trying to do is you're trying to have a more risk appetite. Okay, and I am a big follower of Akshat sir again. Personally, I only cater to him. मैं दूसरे को नहीं सुनता हूँ, और सुनता भी हूँ तो सिर्फ ज्ञान लेने के लिए कि कुछ और बता रहा है क्या. Otherwise, I try to follow only one guy. कि आपका स्ट्रैटेजी, मैंने एक चीज सीखी है, आपका स्ट्रैटेजी कंसिस्टेंट होना चाहिए. तो मैं अक्षत का स्ट्रैटेजी मानता हूँ. आई एम अ बिलीवर इन इट. आप किसी और को सुनोगे ना, अगर आप I can also share another Twitter guy I'm following. वो exactly opposite बोलता है अक्षत के. So I just try to learn and follow on the narrative कि दोनों बोल क्या रहे हैं. Still my inclination is towards अक्षत, क्योंकि अपन थोड़ा entrepreneur वाला स्वभाव रखते हैं. तो अक्षत खुद भी entrepreneur लगता है. And he is actually. So he has a higher risk appetite. तो मेरा investment ऐसा है कि 10% पक्का क्रिप्टो. युवा खेल लेंगे, ठीक है. वैसे भी अगर इतने इंटेलिजेंट होते तो बचपन से मैं भी वीआईटी चले जाता था. मैं बहुत लोकल कॉलेज से इंजीनियरिंग किया हूँ. माय मास्टर्स वाज फ्रॉम आईएसबी, बट दैट हैपेंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. मेरे डिसीजंस उतने अच्छे नहीं थे. मैंने तब लाइफ में जुआ खेल लिया, तो मैं अभी भी खेल ही सकता हूँ. दैट्स वन एरिया. लाइक 10% तो पक्का डालना है, ठीक है. देन रिमेनिंग 10% आई डू इन पीपीएफ ईपीएफ, ताकि मेरा एक छोटा सा कॉर्पस हो कि अगर कल दुनिया बर्बाद हो जाए, नौकरी चली जाए, तो अपनी दाल रोटी चलती रहे, ठीक है. वो मैं सेविंग्स तोड़ के एटलीस्ट तब तक अपना गुजारा कर लूँ. 70 to 80% यार मैं ना एग्रेसिव रहना पसंद करता हूँ इक्विटीज एंड म्यूचुअल फंड्स, ठीक है. क्योंकि इक्विटीज और म्यूचुअल फंड का एडवांटेज वही है कि यार ये ना रियल ग्रोथ देता है, ठीक है. अगर आप बाकी भी देखोगे ना कि कौन से इंस्ट्रूमेंट्स लाइक डेब्ट फंड्स हो गए और ये सब हो गए, आप यू सेड अ वेरी गुड पॉइंट दैट कैन आई कैन स्टे सेफ. मैं अगर बढ़िया पीपीएफ ईपीएफ और वीपीएफ कर लूँ ना. सी, मेरा एक दोस्त है, उसकी बहुत बढ़िया लाइन है. वास्तव में आपको सबसे बढ़िया रिटर्न अगर कोई देता है तो वो पीपीएफ और ईपीएफ ही देता है, ठीक है. ये दो जो सॉलिड रिटर्न्स देते हैं ना कंपाउंडिंग के, ये तो करना ही चाहिए. इसके अलावा जो आपका रिमेनिंग कॉर्पस है, तो आप इसमें कितना डाल सकते हो. अज्यूमिंग यार मैं अज्यूम कर रहा हूँ बेलोर से निकलोगे, आप मिनिमम 10 लाख कमा रहे हो. जैसे आपको पीपीएफ का एडवांटेज कितना है, 1.5 लाख का गीच लो. 1.5 लाख से ऊपर आप डाल के कोई सेंस ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपको उसके ऊपर टैक्स एडवांटेज नहीं है. और उसके बाद अभी जो गवर्नमेंट जैसा चेंज कर रही है ओवर द टाइम, क्या पता उस पे भी टैक्स लगा दे, जैसा म्यूचुअल फंड्स पे अभी ये लगा रहे हैं, ठीक है. शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कभी किसी ने सोचा नहीं था यार कि ऐसा भी होगा. अब पेल के लगा रहे हैं, क्रिप्टोस पे 30% लगा रहे हैं. तो वो इंस्ट्रूमेंट अब 1.5 लाख की कैप तक पूरा खींचोगे, क्योंकि वो ना अभी मजा नहीं आता है, बट ओवर द 10 ईयर 15 ईयर्स तब उसके कंपाउंडिंग में मजा आता है. और वो बहुत पेशेंस का गेम है ब्रो. पहले के 3-4 साल तो लगेगा क्या गड्ढा डिसीजन है यार, और लगता है मेरे को भी, क्योंकि मैं बहुत डालता हूँ और कुछ दिखता ही नहीं यार, हिलता ही नहीं है वो, ठीक है. तो बस ऐसा आता है प्रॉफिट गया गया गया. बट आई एम जस्ट अगेन लाइक स्टिकिंग टू द वर्ड्स दैट पीपल विद द विजडम हैव शेयर्ड, कि वो कंपाउंडिंग का मजा ना लेने के लिए 10 साल 15 साल 20 साल का पेशेंस चाहिए. तो वो एक गेम चल रहा है. रिमेनिंग आप 70% जो पैसा बचा अपन डालेंगे स्टॉक्स में. मेरा वो स्ट्रैटेजी है. और मैं उसमें भी ब्लू चिप नहीं रखता हूँ. मैं थोड़ा और एग्रेसिव रहता हूँ. मैं मिड कैप पे अभी प्रेफर करता हूँ. मिड कैप, हाँ भाई, अभी जैसा अमृतांजल हो गया, दीपक नाइट्रेट हो गया, हिंदुस्तान यूनिलीवर, थोड़े मिड कैप, थोड़े लाइक स्ट्रॉन्ग लार्ज कैप, इन्हीं में खेलना है. मतलब मेरे को पता ही है एफडी जैसे ही है, बट जब भागेंगे वैसे ही भागेंगे. सो दैट्स माय अप्रोच. और आई एम हार्डकोर फॉलोअर. मैं जो बोलूंगा सब अक्षत के वीडियोस, अगर आप सब वीडियोस देखते हो अक्षत के, तो यू विल रेजोनेट कि ये सेम बात कर रहा है. Yeah. आई डोंट थिंक यहाँ पे सब अक्षत सर को जानते हैं.
बिकॉज वो मैंने एक उनका ट्वीट पढ़ा था और उसमें मैंने कमेंट कर दिया था, तो इससे लोग आए थे। तो मेरे ना, मैं आपको 2 हैबिट्स के लिए गाइड करना चाहता हूँ। इट टुक मी 6 इयर्स टू अनकवर दोज़ हैबिट्स। जितने लोग पसंद है ना, 2 या 3 लोग, ज़्यादा नहीं। उनका यूट्यूब चैनल पे घंटी बजा दो और ऑल कर दो। ट्विटर पे उनके ऊपर घंटी बजा के ऑल कर दो। उनका हर ट्वीट, उनका हर वीडियो देखो। यू डोंट नीड अ फाइनेंशियल कोर्स। ये लोग ना सबसे बढ़िया ज्ञान वहीं देते हैं अपने फ्री वाले में, क्योंकि ना इनको अपना उस जनता को एंगेज रखना। लाइक ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई इज गर्गी इवन होस्टिंग दिस। गर्गी, द ओनली रीजन शी इज डूइंग इट, it's not because you are like curious. No, you want to be an entrepreneur, you want to create a brand out of your own self. ठीक है, आपको खुद का फोरम चलाना है, दैट्स योर ब्रांड। ठीक है, दैट्स योर, आप खुद सीखना चाहते हो, बस आपने वो एक रीजन बना लिया, यू हैव अ थीम अराउंड इट, बट एट द एंड ऑफ द डे यू वांट टू क्रिएट योर ओन फोरम। ओके, सो सेम इज लाइक दैट। आप इस फोरम में बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें करोगे ताकि आप लोगों को एंगेज करो। आज आपके पास कितने लोग हैं यहाँ पे? 5 7 10 लोग हैं, कल हो गए 50 चाहिए। अक्षर के एक वीडियो पे 1 घंटे में 10,000 लाइक्स होते हैं। सो योर गोल इज लाइक दैट। ठीक है, सो 2 3 लोग पकड़ लो, उनकी हर चीज फॉलो करो, उनका हर ट्वीट भाई पूरा चूस दो उनको, जिस जिस पोर्टल पे जो जो डालते हैं ना सब खींच दो। बस यू डोंट नीड एनीथिंग एंड कीप ऑन लाइक। आप एक दिन में सब नहीं पढ़ सकते। जैसा मैं बता रहा हूँ आपको, मेरे को स्टॉक मार्केट का थोड़ा थोड़ा क्लैरिटी है अभी, बिकॉज आई एम इन्वेस्टिंग लाइक 30 मिनट्स एवरी डे। क्रिप्टो का कोई क्लैरिटी नहीं है मेरे को। आपकी सीरीज देख रहा हूँ मैं, आपने जो रिकमेंड किया अंकुर, क्या रीच टिल 4th वीडियो, आई एम फाउंडिंग इट वेरी रेलेवेंट। तो छोटा छोटा लाइक ब्लॉक बाय ब्लॉक ऐड होता है। और ये जो इंस्टाग्राम पे आजकल बढ़िया चलता है ना, बहुत सारे अपने आप को मास्टर्स बताते हैं, उनको तो बिल्कुल मत करना, उनको ब्लॉक कर देना, उनको कुछ नहीं समझता है। वो लोग वही चीजें डालते हैं जो फैंसी लगती है, फैंसी चार्ट। वो लोग अपने बैड ट्रेड्स नहीं बताते हैं। रिसेंटली मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मेरे को बहुत फोन आती है, सर ये कर लो वो कर लो। मैंने बोला कि ठीक है, मेरे को भेजो एक ऑप्शन। तो उन्होंने मेरे को सी भेजा बैंक निफ्टी का, और मैंने बस मॉनिटर किया। मैंने बोला कि मैंने ट्रेड कर दिया है 25,000। मैंने किया नहीं था। वो 320 रुपए का 120 पे आ गया था 1 घंटे में। मतलब एक तो जान निकल जाती, पूरा दिन खराब हो जाता अगर मैं लगाता था तो, क्योंकि यार 25,000 के फिर सीधा सीधा 10 हो जाते। उसको कब निकालूंगा मैं यार? मेरा तो उस दिन 2 दिन 3 दिन तो मूड खराब हो जाएगा जब तक मैं रिकवर नहीं कर पा रहा हूँ। तो किसी की मत सुनो, 1 या 2 अपने गुरु पकड़ लो और उनको बढ़िया पेल के फॉलो करो। सो दैट्स द गोल्डन रूल हियर। एंड स्टिक टू वन स्ट्रेटजी। मैं बता रहा हूँ आपको, फॉर 10 years 20 years मैंने वही किया है। हवा में तीर चलाए हैं सब, भाई ये चल रहा है तो ये ले लो, वो चल रहा है। तो मैंने वो गलतियां बहुत की है, आप मत करना। So, yep. Sorry, I was answering something to my wife there, but I hope that gives you some clarity. क्योंकि मैंने पर्सनली वीडियोस पे बहुत टाइम स्पेंड किया है यार, और मैं बहुत ट्वीट्स भी पढ़ते रहता हूँ, तो वहीं से बिल्ड कर रहा हूँ थोड़ा 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 थोड़ा। और मैंने उस दिन एक पीडीएफ भेजा था, लाइक टू योर क्वेश्चन सौम्या। मैंने उस दिन जो पीडीएफ भेजा था, मैंने उसमें लिख के भेजा था, फॉर स्मार्ट लाइक लॉन्ग टर्म एंड रिलायबल इन्वेस्टमेंट। पेज नंबर 17 18 चेक कर लो। वो आपका सवाल का क्लियर जवाब है। आपको एफडी से बेटर चाहिए, वहां पे आपको टॉप ब्लू चिप है, फिर टॉप हाइब्रिड है, फिर टॉप ऑपरेशनल है, वहां पे सब टाइप के फंड्स है, और वो पेड रिपोर्ट है। तो वो फ्री में अच्छा कंटेंट है, उसमें आप पढ़ लो, मजा आ जाएगा। किसी ने पढ़ा वो रिपोर्ट अच्छे से? आपने कौन सा पीडीएफ डाला था? इकोनॉमिक टाइम्स वाला? यस, हम्म, डोंट स्टडी दैट। दैट्स द थिंग, लाइक यू शुड स्पेंड टाइम विद। मतलब वो मैंने वो बढ़िया चीज है यार। ओवर व्यूइंग किया, बस ऊपर ऊपर देखा, मैंने इन डेप्थ नहीं जाके ऐसा ब्रो, नहीं लाइक देखा था वो। पेज नंबर 17 18 19 एकदम मक्खन है यार। आपको इतना मजा आएगा ना वो पढ़ के। लाइक सी, हम वैल्यू रिसर्च जितने तो होशियार नहीं है ना, ठीक है? तो वैल्यू रिसर्च का रिपोर्ट है, कुछ तो सेंस बनेगा। तो वहां से स्टॉक्स उठाओ, फिर गूगल कर लो, ग्रो की रिपोर्ट पढ़ लो। उनके ऊपर ग्रो की रिपोर्ट बहुत सॉलिड होती है। और इसके अलावा किसी को स्क्रीनर चलाने आता है? screener.com। स्क्रीनर लाइक मैंने यूज किया था एक टाइम पे, लाइक कुछ दिनों के लिए, फिर मेरे को उतना कुछ जम नहीं रहा था, समझ नहीं आ नहीं, रहा। वो फिर मैंने सीखो छोड़ दिया। यूट्यूब पे, उसके ट्यूटोरियल्स देखो, उस पे क्वेरी लिखना होती है। सो आप उसमें क्वेरी लिख सकते हो, शो मी स्टॉक्स वेयर द रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन 30 इन द लाइक द एज ऑफ आरओसी इज और आरओई इज योर 5 years। तो उसने कम से कम 20 साल 5 साल तक हर साल 30 तक का ग्रो किया है क्या? और वो कैश रिच कंपनी, वो क्वेरी समझ लो कैसे काम करती है। भाई वो स्किल है, वो इन्वेस्टमेंट का स्किल है, यू शुड नो इट। लाइक मैं
रेडीमेड यूज करता हूँ, लाइक मैं टॉप वहाँ पे देख लेता हूँ टॉप स्क्रीन कौन से, और वहां जाके अपना मेरा काम हो जाता है, ठीक है। तो आप वैसे अपने, और वो क्वेरीज बहुत रीडेबल है, लाइक ना, यू कैन जस्ट से if this is greater than this and this is greater than this, that's it, like SQL जैसा है। हम्म, तो बहुत काम की चीज है यार वो। मैंने स्टार्टिंग में कुछ किया था, लाइक हर दिन मैं देखता था वो डाल के कि आज इसका दिखाओ इसका दिखाओ, फिर मेरे को बहुत सारी लग रहा था, कॉम्प्लेक्स टाइप का वो चीज लग रहा था, फिर मैंने नहीं छोड़ दिया कि नहीं, लाइक बढ़िया चीज है यार वो। एक स्क्रीनर है, और दूसरा दूसरा भी मैं यूज करता हूँ यार, कुछ मेरे को याद नहीं आ रहा है, बट आई कीप डूइंग इट। स्क्रीनर के अलावा टिकर टेप करते हो आप यूज? टिकर टिप या टिकर टेप तो, ये दोनों ना स्किल है। अगर आपको ये दोनों आते हैं तो आपको बहुत कुछ आता है। मार्केट मूड इंडेक्स के हिसाब से ना बहुत चीजें मूव होती है, जैसे फ्री टूल। जैसा अगर आप tickertip.com पे जाओ, अभी tickertip.in पे अभी चले जाओ, अगर आप लैपटॉप पे हो तो आपको उसमें लैंडिंग पेज पे देखेगा मार्केट मूड इंडेक्स। मार्केट अभी पूरा डरा हुआ है। फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स और फॉर एग्रेसिव इन्वेस्टर्स, दिस इज द टाइम टू एंटर। यार लगाओ, आपका पैसा SBI HDFC में रिलायंस में डूब ही नहीं सकता। ये डूबे तो देश डूब जाएगा ऐसा, क्योंकि ये टॉप फंड है हमारे देश के। तो जब बुल रन लाइक आएगा while तब आप, while investing, do you prefer stocks backed by government, like SBI के stocks? नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है ब्रो। अब दीपक नाइट्रेट देख लो, अमृतांजल देख लो, सौरभ मुखर्जी के वीडियोस देखते हो आप लोग? हम्म, तो बेसिकली ना, उतनी डिटेल रिसर्च नहीं, पर नॉर्मल रिसर्च कर लो। जैसा अब सौम्या कंपनी चला रहा है, निखिल को सौम्या के बारे में हम्म, कुछ नहीं पता, सो हाउ डू आई रिसर्च हम्म, अबाउट इट? आई विल गिव यू सम टिप्स, नॉट द एक्सपर्ट हियर अगेन, डू योर ओन ड्यू डिलिजेंस। बट सौम्या क्या करता है, सौम्या के डिसीजंस कैसे हैं, सौम्या ने क्या पास्ट में कैसा ग्रो किया है, सम बेसिक इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल। सौम्या की कंपनी में प्रमोटर्स कौन है, क्या वो उसके भाई बहन चाचा भतीजे मामा मामी तो नहीं है, ठीक है। वो प्रमोटर्स अपने बिजनेसेस को लेके कितने सीरियस हैं, उनके और कहाँ कितने इन्वेस्टमेंट्स है, धंधा करना है या टाइम पास करने आए हैं। जैसे विजय माल्या की कंपनी में बहुत प्रमोटर्स उसके, या मेहुल चौकसी की कंपनी में बहुत प्रमोटर्स उनके भाई बहन रिश्तेदार, सारे गुज्जू भाई बहन आ गए थे। पता है स्कैम करने वाले, अपनों को उठा लो और सब गायब हो जाओ। तो कौन कितना क्लीन है, आप जितना रिसर्च कर सकते हो कर लो। दैट्स सौरभ मुखर्जी स्ट्रेटजी एंड दैट्स द क्लीनेस्ट स्ट्रेटजी, बट दैट्स टू मच एफर्ट यार, उतना नहीं होता मुझसे। सो आई इंक्लाइन टू अक्षत, आई रिलाई ऑन हिज एनालिसिस, कि आई कंप्लीटली लाइक ट्रस्ट ऑन हिम। तो मैं हम्म, उधर से लीड उठाता हूँ और आगे फिर अपना दिमाग चला के बेसिक रिसर्च करके कर लेता हूँ। तो यही है, हम्म। गवर्नमेंट बैंक से कुछ नहीं होता, आप उस कंपनी की रिपोर्ट्स पढ़ो। और जैसा, लेट्स टेक एन एग्जांपल, स्क्रीनर खोलते हैं। कैन यार, मैं ना स्क्रीन लाइक नहीं शेयर शेयर कर करते सकता हैं मैं। ना, मैं दे मैं देती नहीं हूँ कर आपको सकता, आप लोग स्क्रीन करो। हाँ, शेयर राइट्स। नहीं नहीं नहीं, आप ही रुक शेयर जाओ मैं करो, करता हूँ। आप ही शेयर करो। हाँ, यू हम्म, ओपन द, यू शेयर योर स्क्रीन एंड moment हम्म, yes. Guys, I have to drop in 5 minutes. Let's do this and then I'll talk to you later as well on this. So अगर आप स्क्रीनर पे जाओगे, अपने स्क्रीनर प्रेजेंट कर रहे हो क्या? गार्गी, लाइक अच्छा मैं करूँ, रुक एक सेकंड। हाँ, या तो कर या फिर दे से अलाउ कर। मैंने सब देखा मुझे स्क्रीनर पे ऑप्शन जाओ, नहीं। वहाँ पे दीपक नाइट्रेट पे जाओ। Yeah, I can see your screen now. It's coming up. Yeah, Deepak हाँ Nitrate. दीपक Yes. है। Hit. Yeah, first one. First one. Yeah. Now see here, पहले तो देख लेते हैं इस कंपनी का ROE और ROC क्या है। बढ़िया है, 39 बहुत हाई है, ठीक है। रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड रिटर्न ऑन इक्विटी, ठीक है। तो ये बहुत ही शानदार है। 39 इज लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मिंग कंपनी। नाउ लेट्स गो टू इस पे प्रॉफिट एंड लॉस पे चले जाओ ऊपर। But the stock P is like 25 no? Then and most of the people say कि अगर 20 के भाई नीचे है तब पी आपको फर्जी इन्वेस्ट करना। होता है, पी फर्जी होता है, पी मत देखा करो। पी का कोई लेना देना ही नहीं है स्टॉक के ऊपर नीचे जाने से, मतलब दैट्स व्हाट आई हैव लर्नड फ्रॉम सौरभ मुखर्जी। आई Okay. want to skip this discussion and jump on profit and loss. I mean, nothing rude on you. I Yeah, have to yeah. drop off on the call from the call in 5 minutes. तो Yeah. एक फटाफट आप ट्रेंड देख लोगे ना, अगर आप इफ यू गो ऑन द चार्ट, नीचे जाओ थोड़ा सा करके, उस पे देखो। एक तो पहली बार ये ना स्टॉक थोड़ा अपने पीक से 2800 2900 से 2000 पे आया है, मतलब स्टॉक में 35% का ड्रॉप है, ठीक है। अब आप उसके ऊपर जाओ, प्रॉफिट एंड लॉस पे, जो ऊपर है, हाँ, सबसे ऊपर है प्रॉफिट एंड लॉस। टूल्स के नीचे देख। कहाँ पर है?
ऊपर यार स्क्रीनर सबसे Just ऊपर check. चार्ट एनालिसिस, This is पीयर, peers. क्वार्टर, Okay. प्रॉफिट एंड लॉस। हाँ, हम्म। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस पे जाओगे ना अगर, तो लेट्स सी इस कंपनी ने 2015 से कैसा प्रॉफिट मचाया हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 140 करोड़, देन 169, 200, 400, 1000, 1200, 1600। कंपनी ग्रो कर रहा है हर साल, हम्म। कंपनी ने बढ़िया रिटर्न दिया है, ठीक है। नाउ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस एंड नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस, आप उसका लास्ट रो देखो, 53 से लेके वो 1090 गया है। मजाक तो नहीं कर रहे थे वो लोग, उन्होंने अपनी कंपनी को 20 फोल्ड्स बढ़ाया है। 50 into 10 is 500 and then into 20 is 1000। ठीक है, इन्होंने 20 फोल्ड्स अपनी कंपनी का प्रॉफिट इन 5 इयर्स बढ़ाया है, ठीक है। दिस इज योर 6th ईयर एंड देन 6 इयर्स में अच्छा किया है कंपनी ने। नाउ गो टू बैलेंस शीट्स एंड कैश फ्लोज। कैश फ्लोज पे चले जाओ, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे कैश फ्लोज में कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग कंपनीज, ठीक है। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कंपनी कितना इन्वेस्ट कर रही है अपनी ग्रोथ में। 2015 में 89 करोड़ लगाया, 2016 में ये माइनस, मतलब उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया। अगर आप देखोगे हर साल इन्होंने पेल के पैसा इन्वेस्ट किया है यार, मजाक थोड़ी नहीं कर रहे। इतना कमा रहे तो इतना इन्वेस्ट भी करें। इट मींस दैट दे आर डैम सीरियस अबाउट देयर बिजनेस, ठीक है। उन्होंने 2021 में अपने हाथ में से 7 करोड़ रखा, उन्होंने बाकी पूरा पैसा फाइनेंसिंग और अपने इन्वेस्टमेंट और ऑपरेटिंग कैपेसिटी में यहाँ लगा दिया, ठीक है। तो दैट्स अनदर थिंग। नाउ गो टू इन्वेस्टर्स, ठीक है। इन्वेस्टर्स में एफआईआई मतलब फॉरेन इन्वेस्टर्स, तो ठीक है। अभी देखो फॉरेन इन्वेस्टर्स ने अपनी इक्विटी हर साल इसने बढ़ाई है। आखिरी में अभी सितंबर और दिसंबर में कम किया, आई थिंक इसमें जनवरी में दिखा रहा है, जैन में वापस बढ़ी है वो 22 में। तो ये कंसिस्टेंटली इन्होंने बढ़ाई है। और सिर्फ डीआईआई ने कम किया बिकॉज ऑफ लाइक आई डोंट नो व्हाट इज रीजन, बट एफआईआई बड़े होल्डर्स होते हैं। लाइक डोमेस्टिक मनी इज कंपैरेटिवली लेस एज कंपेयर टू इंटरनेशनल मनी, ठीक है, because they invest in dollars and when it is invested in INR it's huge। तो ये भी अच्छा फर्क पड़ता है। और अगर आप पब्लिक देखोगे तो पब्लिक ने भी इसके ऊपर ट्रस्ट बढ़ाया है, लाइक इन्वेस्टमेंट बढ़ी है, कम नहीं हुई है। और इवन आप प्रमोटर्स देख लो, प्रमोटर ने भी अपना 1 से 2% ओवर द इयर्स बढ़ाया है, ठीक है। तो ये बेसिकली दिखा रहा है कि नहीं, कंपनी में ट्रस्ट तो बढ़ा है, ठीक है। और फर्टिलाइजर्स में एकदम धूम मचाने वाली कंपनी है ये 5 साल में, ठीक है। Like one of the top contributors of fertilizers in coming 5 to 7 years। तो ये बेसिक एक स्किल है जो सबको आना चाहिए, स्क्रीनर एंड टिकर टेप। कूल। एनी लास्ट क्वेश्चन? No. आई थिंक अपने को यार क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टिंग के बाद थोड़ा स्टॉक मार्केट को बेटर समझना चाहिए। लाइक हमने सोचा था हम या एनएफटी पे जाएंगे। कोई भी एक जगह पे एक्सपर्टीज कर लो, पहले एक जगह पे एक्सपर्टीज कर लो, सही है। या गो अहेड, यू वर सेइंग समथिंग। नहीं, आई वाज जस्ट सेइंग दिस कि नेक्स्ट अपने इस पे फोकस करते हैं थोड़ा। मीटिंग खत्म होने वाली है 2 मिनट में, वापस ज्वाइन करनी होगी। ठीक है गाइस, आई थिंक इवन आई हैव टू रन, अदरवाइज उड़ती चप्पल आएगी मेरे वाइफ से। सो I'll talk to you later, and if there are any resources that you're curating, do share it with me. I am also like open for new learnings. Yeah, Yeah. thank you, Nikhil bhaiya. Sure. We do share on the group. Cool. Okay. We hope you Yeah, join cool on guys, Saturday. bye-bye. Yeah, definitely. Okay. Thank you. Thank you. गाइस वापस ज्वाइन कर बंद लेते कर हैं, दे मीटिंग एंड कर रही हूँ। हाँ, उसी हाँ। लिंक पे मैं वीडियो देख जाएंगे। ये याद रखना तुम कि इवन दो ये फ्यूचर ऑफ क्रिप्टो इन इंडिया है, ये वीडियो पास्ट का है, तो इसमें काफी सारी चीजें रिलेवेंट नहीं भी होंगी। तो बस देखते क्या बोलता है। Last part, the 6-part series on cryptocurrency investing with Mr. Chetty. आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे the future of cryptocurrency in India and the taxation. दोस्तों हमने काफी एक लंबी जर्नी कवर करी है। पिछले 10 हफ्तों से हम 5 एपिसोड रिलीज कर चुके हैं ऑन क्रिप्टोकरेंसी, गोइंग थ्रू एवरीथिंग, ताकि अब आज के एपिसोड के बाद आपके पास एक 6-part सीरीज हो व्हिच इज ऑल दैट यू नीड टू नो अबाउट क्रिप्टोकरेंसी। बेसिक है, स्टार्टिंग पॉइंट है, लेकिन अवेयरनेस के लिए अगर आप
क्रिप्टोकरेंसी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या क्रिप्टोकरेंसी के बारे में समझना चाहते हैं, then I'm confident कि ये 6 पार्ट सीरीज जहां पे मिस्टर शेट्टी who is the founder and CEO of FTX, India's largest cryptocurrency exchange, उनको एक एक्सपर्ट के तौर पे बुलाया, उनके साथ गुफ्तगू करके जानने की कोशिश करी कि क्रिप्टोकरेंसी आखिर किस चीज का नाम है, किस चीज का नाम, हाँ, किस चीज का नहीं, किस चीज का कुछ और किस भला का। ओके, आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज। सबसे पहला टैक्सेशन, व्हिच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्ट करके आप कंपाउंडिंग का बेनिफिट कमाते हैं, कंपाउंडिंग के बेनिफिट से वो वैल्यू बढ़ती है, इन्फ्लेशन से उसकी वैल्यू एडजस्ट होती है, लेकिन टैक्सेशन एक ऐसी चीज है जो उस पॉइंट पे उस वैल्यू को और गिराती है। तो टैक्सेशन समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट जब कभी भी कोई भी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी अपना रहे हैं। सेकंड, व्हिच इज इक्वली इंपॉर्टेंट स्पेशली इन इंडिया, कि हाल ही में काफी चर्चा हुई है कि क्रिप्टोकरेंसी शायद बैन सकती है, क्या शायद सरकार ने क्रिप्टोकरेंसी अनाउंस करेगी। इसके चलते अब इन सारी चीजों में मैंने निश्चल से बात करी, गुड थिंग अबाउट निश्चल इज कि वो पिछले बहुत सालों से, आई थिंक अबाउट 1000 डेज, वो हर रोज एक ट्वीट करते हैं इन फेवर एंड इन सपोर्ट ऑफ करेंसी। तो उनकी डेडिकेशन, उनकी कमिटमेंट की मैं वैसे ही दाद देता हूं, एंड ही इज बीन सो क्लोज टू द एंटायर इकोसिस्टम, रेगुलेटर से बात करना, बाकी और क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजेस से बात करना, बाकी कंट्रीज से एग्जांपल्स लेके आना और ये समझना और ये जानने की कोशिश करना कि क्या हो रहा है वहां, जिससे हम और हमारा देश सीख सकता है। So there is, I don't think anyone better than him right now in the country to give an opinion कि क्या चल रहा है और क्या बदल सकता है। And when I spoke to him and I had that chat, तो बहुत clear था कि there are some things which he's very very confident on will not change. There is of course this trigger and this risk कि कुछ हो सकता है जिसके बारे में हम prepared नहीं है, जिसके लिए हम prepared नहीं है। तो आप please as an investor, as a long term investor, इस बारे में मत डरिए कि क्या पता ये इन्वेस्टमेंट आगे रहे या नहीं रहे, या कोई इसको छीने। The good thing about crypto is कि वो decentralized है, इसका मतलब ये है कि कोई उसका ओनर नहीं है, कोई आपसे वो ले नहीं सकता है, वो सिर्फ पोटेंशियली आपको ये बोल सकता है कि दिस इज नॉट अलाउड इन वेरियस कंट्रीज। और इस पूरी दुनिया में बहुत ही कम कंट्रीज हैं जिन्होंने मोस्ट कंट्रीज हैव नॉट डन इट, वो उसको फेवर ही कर रही हैं, एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब निश्चल ने सारा बताया तो एक तरीके से सांत्वना मिली दैट समथिंग इज रोबस्ट एंड देयर इज प्रेसिडेंस टू हाउ दिस हैपेंस। निश्चल की कॉन्वर्सेशन शुरू करते हुए आई होप दिस एग्जैक्टली हिंदुस्तान में बहुत अभी थोड़ा सा एम्बिग्विटी वाला माहौल है क्रिप्टो को लेकर, क्योंकि थोड़ा सरकार ये सजेस्ट कर रही है कि ये क्रिप्टो को बैन करके शायद अपनी करेंसी लॉन्च करेंगे, उसकी वजह से थोड़े से एक्सचेंजेस भी काफी ट्रबल में आ गए हैं लेटली उनके बैंकिंग पार्टनर्स को लेके। तो इन सब माहौल में हाउ शुड समवन हु विशेस टू इन्वेस्ट इन क्रिप्टो थिंक अबाउट दिस? आई थिंक मल्टीपल वे से आप देख सकते हो। एटलीस्ट मैं चीज ऐसे देखता हूँ कि मैं एक बिफोर वी गो ऑन, मेरे को बस एक चीज पूछनी थी। यार ये जो अपना यूनियन बजट था, ये तो एक प्रपोजल होता है, फिर उसके बाद गवर्नमेंट उसको पास करती है, राइट? तो फिर ये क्रिप्टो का 30% टैक्स पास हुआ है, उसमें कुछ और चेंजेस नहीं हुए ना? पास हो गया। मतलब कुछ ऐसे चेंजेस का मैंने कहीं सुना तो नहीं है, तो आई एम अज्यूमिंग कि वो पास हो गया होगा। ना टाइम नहीं इंस्टाग्राम वगैरह लगता पे है सुना कि है। तुरंत पास हो जाता है, शायद कुछ टाइम लगता है ना। नहीं यार, यूनियन बजट है, मतलब पूरे साल चलना है, तो जल्दी पास हो जाता होगा। कितना टाइम हो गया, महीना खत्म होने वाला है। तू कहाँ रहती है? इंडिया में ना? सब देख के तो वो सोच चुप फिर। रहे, मेरा भारत महान, चुप रहे। महान है। ठीक है, चल ना एक बार सर्च कर ले, मेरे को नहीं लगता पास हुआ है। देख रही हूँ, कहीं पे भी ऐसा लिख के नहीं आया कि पास हुआ है कि नहीं। ट्वीट कर दे जरा, 1 महीने से पास नहीं हो रहा, पता कर चल क्या रहे जाएगा हो? 5 मिनट। यार हम कब से बोल रहे हैं, हम बोल नहीं, हमको लग रहा है कि ये जो यूनियन बजट बनता ही है कि भाई ये मतलब एक तरह से पहले ही से पास्ड है, ये बन गया है, ये होना ही है। अब कितना होता है वो तो नहीं पता, लेकिन हमको लगता है कि ये बन ही रहा है कि पास चलना ही है तो चलना ही है। अगेन मेरे को नहीं पता। हाँ वो तो हो मेरे को भी सकता नहीं है, पता। बट कुछ तो चेंज करते ही होंगे। देखो, मिनिस्ट्री ऑफ क्या, फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बनाती है ना, हमें कुछ कुछ भी नहीं फाइनेंस पता है, करके हम क्या करने वाले हैं। फाइनेंस मिनिस्टर ही बनाती है भाई। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बनाता है क्या यूनियन बात, बजट। तो फाइनेंस मिनिस्टर भी तो इन्वॉल्व होती है ना? भाई नहीं, सरकाज़्म था यार, समझो। ओ अच्छा सॉरी। हंस दो यार, हंस दो प्लीज, हंस दो। नहीं मतलब ठीक क्या है, था हाँ, पूरा वीडियो सही एक बोल बार रही देख थी, लेंगे, Ministry of फिर करते रहे। हाँ 11 मिनट का वीडियो, 10:30 बजने वाले, प्लीज।
देख ले इतना मजेदार है, देख ले। जल्दी उठा है तू। हाँ थैंक यू। ये दुनिया में दो तरीके से देख सकते हो। अभी लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ गैम्बलिंग। गैम्बलिंग पूरी दुनिया में मैक्सिमम कंट्री पे बैन है, कुछ कंट्रीज में अलग है। तो इंडिया क्या करेगी? इंडिया भी बैन करेगी, व्हिच इज फाइन, आई थिंक इट्स गोइंग विद द वर्ल्ड। बट अभी आप देखो इंटरनेट सिर्फ एक कंट्री में बैन है, नॉट कोई, और बाकी सब कंट्रीज में अलग है। तो इंडिया क्या करेगी? इंडिया बाकी सब कंट्रीज जो करे वो करे। अभी मेरा क्वेश्चन, इंडिया कौन से कैटेगरी में आ रहा है? और सिंपल सा क्वेश्चन। बहन आवाज नहीं आ रही। क्या आवाज नहीं आ रही? तेरी अब आ रही है, वीडियो की नहीं आ रही है। तुम लोग को आ रही है क्या कि मेरे को ही नहीं आ रही? पॉज सर। गुड ऑब्जर्वेशन ऑफ है, लेकिन जब चालू था तब नहीं आ रही थी, कहने का तात्पर्य वो था। मेरा नेट ग्लिच कर रहा है शायद। अभी आ रही है आवाज? चालू कर। It's actually paused. हाँ अब आ रही है, अब आ रही है। ओके मैं पीछे कर रही हूँ। एटलीस्ट मेरा ये कम से मैं ताकि ये दुनिया में रह सकता हूँ, ट्रिपल दुनिया के दो तरीके से देख सकते हो। अभी लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ गैम्बलिंग। गैम्बलिंग पूरी दुनिया में मैक्सिमम कंट्रीज में बैन है, कुछ कंट्रीज में अलग। तो इंडिया क्या करेगी? इंडिया भी बैन करेगी, व्हिच इज फाइन, आई थिंक इट्स गोइंग विद द वर्ल्ड। बट अभी आप देखो इंटरनेट सिर्फ एक कंट्री में बैन है, नॉट कोई, और बाकी सब कंट्रीज में अलग। तो इंडिया क्या करेगी? इंडिया बाकी सब कंट्रीज जो करे वो करे। अभी मेरा क्वेश्चन है, इंडिया कौन से कैटेगरी में आना चाहिए? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, और हमें मेंटली हमें सोचना चाहिए हमारा कंट्री कहाँ है। तो वो एक मेरे को रिलीफ देता है कि इंडिया प्रोग्रेसिव नेशन के साथ जाएगी, नॉट रिग्रेसिव डायरेक्शन। दूसरी बात है कि इंडिया इटसेल्फ, आप इनवर्ड देखिए, इंडिया का लास्ट 10-20 साल से जो प्रोग्रेस हुआ, सबसे हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर हैज बीन इंटरनेट एंड सॉफ्टवेयर। ये जो इकोसिस्टम ने जो कंट्रीब्यूशन किया है मैसिव है। तो अभी जो क्रिप्टो है दैट्स एन एक्सटेंशन ऑफ द इंटरनेट एंड सॉफ्टवेयर। तो क्या इंडिया जिसने लास्ट 10-20 साल में रैपिड प्रोग्रेस किया है, क्या ये टेक्नोलॉजिकल एज छोड़ना चाहेगी और नहीं पार्टिसिपेट करना चाहिए? आई डोंट बिलीव। So I think even it's just confusion right now, which is fine because एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, इनोवेशन हमेशा फर्स्ट आता है और बाद में रेगुलेशन। बिकॉज आप कुछ भी बोलो जो एग्जिस्ट नहीं करता उसमें मैं रेगुलेशन नहीं बना। मैं जब भी रेगुलेशन बनाने के लिए मेरे को कुछ होना चाहिए मेरे साथ। तो अभी क्रिप्टो भी वही हो रहा है, बन रहा है, ये सेक्टर बन रहा है, इससे अनरेगुलेटेड। लोग बता रहे हैं अनरेगुलेटेड, अरे रेगुलेट कैसे करेंगे अगर मार्केट ही नहीं? तो अभी मार्केट बन रही है, लेकिन इवेंचुअली रेगुलेट होगा। तो एंड एज एन इंडस्ट्री हम पुश कर रहे हैं अब रेगुलेशन, बट वी थिंक नाउ इट्स एट अ क्रूशियल टाइम जहां पे अगर रेगुलेट करेंगे तो एज अ नेशन वी बी एबल टू लेट्स से प्रमोट मोर स्टार्टअप एंड ग्रो दिस इकोसिस्टम फास्टर देन अदर नेशन। नहीं तो हम बहुत लेट हो गए। So yeah, that's the state in India as well. And ये चीज मैं समझना चाहता हूँ कि I always tend to think from the other perspective to get a deeper understanding कि कोई भी regulatory authority या कोई भी जो सरकार में है वो जब इस चीज को propose भी कर रहा है, what are the things that they are optimizing for? उनके दिमाग में ऐसा क्या चल रहा है because of which they will say कि crypto जैसी एक चीज potentially इस देश में नहीं होनी चाहिए? Can you help us understand their side? Sure. I think ये पूरा legal process है of forming laws and regulations. उसमें बहुत सारे I would say moving parts. फॉर एग्जाम्पल रेगुलेटर, तो रेगुलेटर्स का काम सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि हाउ डू यू अवॉइड एनी बैड एक्टर्स। तो उनका देखने का तरीका बहुत अलग होगा कि हम इधर कुछ भी गलत चीज होने से कैसे रोक। तो वो जब टर्म्स बोलेंगे वो बोलेंगे कि ये सब नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, और शायद ये सब आपको करना ही पड़ेगा। तो दे आर मोर फ्रॉम अ सेफ्टी पॉइंट। फिर आते हैं हमारे लेट्स से इलेक्टेड लीडर्स, बट जो भी पार्लियामेंट में बैठे, उनका एक ड्यूअल रोल होता है। एक है हाँ रेगुलेटर क्या चाहिए वो देखो, दूसरा है कि जनता को क्या चाहिए वो देखो, तीसरा है कि कंट्री की इकोनॉमी को ग्रोथ करने के लिए क्या चाहिए वो देखो, और तो वो उस डायरेक्शन से जाते हैं। तो उन्हें बहुत फाइन बैलेंसिंग एक्ट करना है। बट इवेंचुअली आई थिंक इससे भी पहले सबको ये समझना है कि ये टेक्नोलॉजी क्या है और ये क्यों यूज हो रही है। आई थिंक अभी हम उस स्टेज में इन नेशन के समझ रहे हैं कि ये क्या है। कंफ्यूजन जो है क्रिप्टो के अराउंड वो दूर है, और ये सेम कंफ्यूजन इंटरनेट में भी हुआ करता था इन द अर्ली डेज, एंड अभी यहाँ पे हो रहा है। आई थिंक 1 साल 2 साल में क्या होगा, हर एक आपको बता पाएगा कि क्रिप्टो क्या होता है, उसमें क्या क्लासिफिकेशन होती है। क्योंकि आज भी लोग सोचते हैं हर क्रिप्टो मतलब करेंसी, लेकिन क्रिप्टो के अंदर 4 बड़े क्लासिफिकेशन है। एसेट है, कमोडिटी अपना करेंसी है, फिर यूटिलिटी है और सिक्योरिटी। तो देयर आर मल्टीपल क्लासिफिकेशन। तो ये सब इमर्ज होने में थोड़ा टाइम लग रहा है, एंड इट्स ऑब्वियस बिकॉज़ इट्स अ कटिंग एज टेक्नोलॉजी, थोड़ा समझने में टाइम लगेगा। बट जैसे जैसे समझेगा आई थिंक रेगुलेशन भी बहुत सिंपल तरीके से इस तरीके से आ जाएगा। And finally, निश्चल की अगर अभी कोई क्रिप्टो खरीद रहा है and buy sell कर रहा है, तो what are the financial implications from a tax perspective for Indian citizen? देखो टैक्स में मैं भी करता हूँ, तो मैं लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि क्योंकि कोई फॉर्मल अभी कुछ आया नहीं है,
तो आप सेफ रहो मतलब हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में जो बच सकते हो बन, डोंट रिस्क इट, डोंट ट्राई टू अज्यूम कि इसमें ये है वो है, इसमें टैक्स नहीं होना चाहिए या कम होना चाहिए, गिव इट इन द हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट जिसपे आप आ रहे हो, ऑन द प्रॉफिट है। तो बस आई थिंक उससे आप सेफ रहोगे, एंड अल्टीमेटली जस्ट कंसल्ट अ सीए और सम टैक्स कंसल्टेंट, बट व्हेन यू पे योर इनकम टैक्स ऑन द प्रॉफिट एट द हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट, आई थिंक ज्यादा डरने की जरूरत नहीं। And with that, we come to an end. ये 6 पार्ट सीरीज जो हमने क्रिप्टोकरेंसी इन्वेस्टिंग पे लॉन्च करी थी has come to an end. And I am so happy with the feedback that we have got, with the engagement that we have got, with the kind of emails that I'm getting and messages that I'm getting कि ये बहुत अच्छा था, वो बहुत अच्छा था. And I think personally for me, the best part was Nischal, क्योंकि वो जैसे मैंने बहुत बार कहा है, such an expert that he gets it, and if you sit with an expert, then you get it as well as a student. तो ये as a playlist and as a combination of 6 videos is available. मैं इसको एक कोर्स में भी कन्वर्ट करना चाहता हूँ, ताकि कोई भी इंसान किसी भी पॉइंट पे कभी भी इस कोर्स को एज अ कंप्लीट पैकेज देख सके. इफ यू फील कि इसको एक फ्री कोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, बिकॉज़ दैट विल गिव मी द एनकरेजमेंट टू डू दैट. अगर आपको लगता है कि नहीं ये वीडियोस ही काफी है, दैट्स परफेक्टली फाइन एज वेल, नथिंग लॉस्ट. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस जर्नी. आई होप कि इस 6 पार्ट सीरीज में आपको वो सारी क्लैरिटी मिली हो जो आप ढूंढ रहे थे व्हेन इट कम्स टू क्रिप्टोकरेंसी इन्वेस्टिंग. एंड आई होप कि आज आप एक वाइजर, knowledgeable or aware cryptocurrency investing. Thank you so much for joining us. Good morning. Signing off. ओके, मेरा एक क्वेश्चन है. उसने बोला कि हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में अपना भरोगे तो सेफ रहेगा. व्हाट डज दैट मीन? गूगल करते रहो. हम लोग इतने ही लोग थे क्या? और भी कोई था ना? किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे थे? मतलब कि कि इस पे तुम अभी क्रिप्टो टैक्स लगा नहीं है, ऐसा ना? कुछ इसी से शुरू किया था. ये, हाँ, ये पिछले साल का है. तो हाँ नहीं, ऑफ कोर्स सितंबर का है. पहले का ही है. फिर हाँ, तो फिर वहां से यहाँ कैसे है? क्या मतलब, क्या पॉइंट ऑफ कनेक्शन क्या था? यही कि हमारे लिए टैक्स इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, हमें कितना टैक्स देना होगा, क्या सेफ रहेगा. आई थिंक इट्स अननेसेसरी फॉर अस टू नो इतना ज्यादा डीप जाके इस समय पे, क्योंकि हम लोग का इनकम टैक्स भी नहीं लगता है शायद. मतलब कि एक सर्टेन एज के बाद लगता है टैक्स, ऐसा? कितना इनकम आती है कितने तब. एज पे? ऐसा कुछ नहीं. ओहो अच्छा, इनकम पैन आती है कार्ड तो पैन ठीक है भाई. पैन कार्ड से हो ही जाता है. पैन कार्ड बन गया, हो गया, देते रहो ITR. पर वो क्या चीज पे लेंगे यार? इनकम आएगा तब ना अरे लेंगे. वो तो जीरो जरूरी नहीं होता कि वो आप इनकम टैक्स पे कर रहे हो तभी आपको ITR फाइल करना है. आप पे नहीं भी कर रहे हो तब अच्छा. भी आपको ITR फाइल करना होता है. मतलब डॉक्यूमेंट सारे देने होते हैं उसमें, बैंक स्टेटमेंट सब. मतलब वही ITR फाइल करना होता है कि हाँ देखो भाई, हम टैक्स, मेरा टोटल इनकम टैक्सेबल ही नहीं है, तो हम टैक्स नहीं दे रहे. ओह अच्छा. नहीं मेरा तो भी यही फिर करते हैं मतलब घर वाले. समझ आ रहा है. ITR फाइल करना शायद जरूरी होता है, क्योंकि लाइक करते तो हैं सभी लोग. उससे टैक्स निखिल भैया रिडीम भी का कर ट्विटर सकते हैं ना पे. कुछ, है ना? क्या? उससे टैक्स रिडीम भी कर सकते हैं ना कुछ, जहाँ पर पॉसिबल है. ITR से नहीं, कुछ तो होता है ना कि टैक्स फाइल करते हैं तो मतलब रिडक्शन. डिडक्शन. हाँ, तुम डोनेट करते हो या कोई ऐसी चीज करते हो तो तुम्हारा टैक्स डिडक्शन. हाँ, अरे जो उन्होंने कहा, लाइक निखिल भैया ने जो कहा था कि आप PPF में 1.5 लाख डाल दो, क्योंकि उतना वो एग्जम्प्ट हो जाएगा आपके टोटल इनकम से. तो वही तो बोल रहे थे कि डिडक्शन अच्छा. हो जाएगा. दो ओके. चीज होती है, एक होती है टैक्सेबल इनकम, एक होता है टोटल इनकम. टोटल इनकम जितना आप कमा रहे हो. टैक्सेबल इनकम बड़ा होता है आपका, लाइक टोटल टैक्सेबल इनकम प्लस डिडक्शन इक्वल्स टू टोटल इनकम. या फिर सिंपली अगर इसको सिंपल पुट कर दे तो टोटल इनकम माइनस डिडक्शन इक्वल्स टू टैक्सेबल इनकम. ठीक है. हाँ. तो हमारे कंट्री में 2 तरह के टैक्स सिस्टम चल रहा है. एक ओल्ड टैक्स रिजीम, एक है न्यू टैक्स रिजीम. ओल्ड टैक्स रिजीम के रेट्स थोड़े ज्यादा हैं, बट उसमें हम लोग डिडक्शन फाइल कर सकते हैं. ठीक है. अंडर द सेक्शन ऑफ 80C एंड 80E. ठीक है. बट न्यू टैक्स रिजीम जो है
उसमें हम लोग कोई डिडक्शन फाइल नहीं कर सकते, बट हम लोग का उनका उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कम है, लाइक टैक्स इंटरेस्ट का। तो अब आप चूज कर सकते हो कि आपको किस टैक्स रिजीम से पे करना है। ठीक है, वो ITR फाइल करते वक्त आप चूज कर सकते हो। तो अगर जिसमें आपका पैसा बच रहा है उसे चूज करके फाइल कर दो। ये होता है सिस्टम। जैसे अभी बढ़िया। कौन सा ईयर चल रहा है? अभी चल रहा है 2022। तुम्हारा 2022। तो अगर सिंपली पुट करें तो 22-23 चल रहा है अभी, है ना? लेकिन इस साल जो अप्रैल से हमारा जो फाइनेंशियल जो चालू होगा वो होगा 21-22। ठीक है? उल्टा बोल रहे हैं ना, 21 नहीं 22 चल रहा है और 22 23 स्टार्ट होगा। नहीं, सिर्फ फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर नॉर्मल ईयर से एक साल पीछे चलता है। तुम सिंपली देखो ना, तुम 21-22 में कितना कमाई हो वो तुम कब बताओगे? अभी तुम कमा ही रहे हैं ना भाई। तो इसका वो लेखा जोखा कब निकलेगा? ओके वो तो ओके राइट, अगले तो साल निकाल के देंगे ना कि हाँ भाई देखो अप्रैल में। इतना कमाए हैं। हाँ, तो तो वो चीज तो होता अभी है। जो बजट निकला है उसको फाइनेंशियल ईयर क्या बोलेंगे? 23-24। बजट का यहाँ बात नहीं हो रहा है। 22 23 यहाँ बोलेंगे ना? यहाँ 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 टैक्सेशन ईयर का बात हो रहा है। ओके, मतलब ITR में जो लिखा फिस्कल, होता होगा हाँ वो 21 हाँ 22 लिखाएगा। हाँ। अगर हम लोग आज फाइल करेंगे तो वो करेंगे शायद जैसे 1 अप्रैल के बाद, तो वो शायद फाइल करेंगे 21-22 के लिए। राइट, मेक सेंस। हाँ हम्म, नहीं ठीक है गाड़ी, तू ना ज्यादा जल्दी जल्दी कमा के 23-24 का भर दियो। बस देखो। बिटकॉइन भेज दे, मेरे को हो जाएगा। ये कौन आके पूछा था हम लोग से बिटकॉइंस का? ये तो पूछा था ना।